हैव यू लर्न टिल नाउ? कोई भी एक जना खड़े होकर समराइज कर दो, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सीख लिया लास्ट 3 दिन में. एनी वन ऑफ यू? नहीं? चलो, तो basically these classes are being organized just to make sure that you get into the course, the atmosphere, how do we teach, because this teaching is different from your schooling and your coaching, right? The coaching has been changed. Previously the coaching was physical, abhi sara online, AI, etc etc, notes, exams. So I will be talking about few important points regarding immunization. So any one of you, what is vaccine and what is immunization? जो भी पता है बताओ. कुछ भी बताओ. हाँ. What is vaccine? Very good. तो क्या करती हैं वो? ठीक है. और कोई better definition? Very good. Weak form of pathogen, which is genetically modulated to create some kind of immunity for that particular bacteria or disease. ठीक है, ये एक basic definition हो गई. Then what is immunization? Anyone from this side? How do you define immunization? Every day we celebrate immunization day. There is an ad on your national television that polio drops should be given to the children. All children should be vaccinated. So what is immunization? And what is immunization program which is run by the government of India? Nahin? Chalo, let's start. So we will be covering these few important points in this class. First will be to define immunization. What is the significance of immunization? Types of immunity, immunizing agents, what is national immunization schedule, contraindications to vaccinations. This is the most important point and you should all remember this. So vaccines are the immunobiological substances which produce specific protection against a given disease. So important word is specific protection against a given disease. Suppose इन्होंने बोला कि अभी एक बैक्टीरिया को हमने एंटर किया जिसकी जो वीकेंड बैक्टीरिया है, the bacteria will create some kind of antigen antibody reaction, antibody will be formed and immunity will be given to that particular child for a particular disease. अब क्या इसका मतलब ये है कि कभी suppose the child is exposed to that particular disease, so then disease will not occur? ऐसा है क्या? Suppose BCG vaccination है किसी को and the child is exposed to tuberculosis when he or she is 2 or 3 years old, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा क्या? होगा. फिर वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी मैं बीसीजी और ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट बीसीजी एंड ट्यूबरकुलोसिस. बीसीजी वैक्सीनेशन पूरा है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से एक्सपोजर होता है, तो क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा? होगा. फिर वैक्सीन का क्या मतलब? बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजीज विल नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग. Infection definitely होगा, bacteria will enter, but there are antibodies in your body. Those antibodies will fight the new antigen which has entered through some kind of source. So there will be disease, but it will not fulminate. It will not be big enough to create havoc in your body for that particular disease, right? इसी तरीके से और भी examples हैं. जैसे आप लोगों ने commonly सुना होगा, जब कोविड था तब there was कोविड वैक्सीन, सब लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाए, तो क्या उसको कोविड नहीं हुआ? हुआ, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजीज स्टॉर्म नहीं था. माइल्ड फीवर, लो ग्रेड कॉफ आया एंड इट वैनिश्ड. वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन, इसमें भी डिफरेंस है. वायरल वैक्सीन कैन बी म्यूटेटेड. जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम एवरी ईयर लगवाते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, हम लोग भी लगाते हैं, तो वो हर स्ट्रेन, हर साल नया स्ट्रेन आता है, ऐड होता है एंड देन वो वैक्सीन लगाई जाती है. अगर मैं 2 साल पुराना लॉट किस साल में लगाऊंगा तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता है. ये हमने कोविड में भी देखा कि फर्स्ट वेव से लेके थर्ड वेव तक देयर वाज म्यूटेशन, राइट? सो वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स और इनएक्टिवेटेड किल्ड ऑर्गेनिजम्स
एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शंस, किसी का प्रोटीन ले लिया, किसी की सेल वॉल ले ली, किसी का कुछ ले लिया, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो कि इस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर व्हाट आर टॉक्सॉइड्स, आपने सुना होगा कि भाई टिटनस टॉक्सॉइड्स लगवा लेते हैं, चोट लग गई टिटनस लगवा लिया। इसका क्या मतलब वो, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटेड? ठीक है, और very good. So it is manipulated form of killed bacteria, you can say. It is done by chemical manipulation at a particular temperature by particular chemicals and stored and transport in that particular temperature. अगर टिटनस टॉक्सॉइड में वैक्सीन उठा के धूप में रख दूंगा या बाहर रख दूंगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। Most of the vaccines are stored in 4 to 8 degree of temperature in the door of the refrigerator. मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, बताएंगे कौन कौन सी वैक्सीन कैसे कैसे है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैक्सीन। अब देर आर सम अदर काइंड ऑफ वैक्सीन विच आर कॉम्बिनेशन वैक्सीन, जैसे हमने बीसीजी की बात करी तो इट इज एन इंडिविजुअल वैक्सीन, पेंटावेलेंट होती है, ठीक है, हमारी डीटी होती है, डीपीटी होती है, ये सारे वैक्सीन आर द कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कोविड वैक्सीन सबको लगा था, सबको, तो वैक्सीन लगने के बाद क्या हुआ? फीवर आया था? बहुत कि कम? बिल्कुल, तुमको नहीं आया बिल्कुल भी? लगी थी नहीं लगी थी वैक्सीन? पक्का? चलो, तो देर आर सम काइंड ऑफ रिएक्शंस आफ्टर एनी मेडिसिन इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन योर बॉडी। ये वैक्सीन की बात नहीं है, किसी को पैरासिटामोल से भी रैशेस हो सकते हैं, किसी को वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो दीज रिएक्शंस हैव टू बी केप्ट इन योर माइंड व्हाइल यू आर गिविंग live attenuated, killed or any vaccine. You have to explain to your patient कि these things will occur. फीवर आएगा बच्चे को, क्योंकि कोई पेरेंट्स अगर पहली बार वैक्सीन के लिए आए हैं एंड आपने वैक्सीन लगाया, आपने बोला जाओ, घर जाके बच्चे को 102 फीवर का स्पाइक है, तो पेरेंट्स विल थिंक दैट, उसको पता नहीं कि वैक्सीन क्या है, वो सोचेगा कि वैक्सीन की वजह से हो गया, मेरा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी बिट दैट ये लाइव वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, इससे फीवर आएगा, इससे ये भी हो सकता है, लोकल रैश हो सकता है, लोकल पेन हो सकता है, थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है। तो दीज थिंग्स हैव टू बी एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स। द आइडियल वैक्सीन शुड इंड्यूस परमानेंट इम्यूनिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोविड वैक्सीन में क्या हुआ? अब अगर मैं कोविड का एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द म्यूटेशन। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज इफ देयर इज अ नेक्स्ट वेव इन 2026, तो ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग हियर इंक्लूडिंग मी इज बीइंग वैक्सीनेटेड, बट वो वैक्सीनेशन उस वेव के लिए काम में नहीं होगा। बात समझे? क्यों? क्योंकि वायरस ने एक बार फिर म्यूटेट कर लिया है, वायरस के नाम चेंज होते चले गए, मुझे याद भी नहीं है, आपको भी नहीं होंगे, और ना आगे जाने वाले 2 साल बाद होंगे, पर जो नया वायरस आएगा म्यूटेट होके, उसमें जो स्ट्रेन होगा वो उस वैक्सीन में नहीं है। तो वायरस या वायरल वैक्सीन की एक खास बात होती है कि वायरस कैन म्यूटेट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर, जो कि कोविड ने किया। अब हमारी क्या डेफिनेशन है कि द आइडियल वैक्सीन शुड इंड्यूस परमानेंट इम्यूनिटी। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताओ कोई भी कि एक वैक्सीन मैंने लगाया और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मुझे मिल गई। वेरी गुड, पोलियो। पोलियो ही इकलौता ऐसा स्ट्रेन है कि जिसने अभी तक बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं दिखाया है। इसका रीजन ये है कि या तो वायरस का स्ट्रक्चर या म्यूटेटिंग फॉर्म इज वीक, उसकी पोटेंसी ज्यादा है बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म इज वीक, दोनों में डिफरेंस है। कोविड, यहाँ पर अगर फर्स्ट बेंच पे 3 लोग बैठे हैं, इन तीनों को कोविड हुआ होगा, तो ग्रीन शर्ट वाले, आप क्या नाम है आपका? रचित। तो रचित को शायद कुछ भी ना हुआ हो, इसको मालूम भी नहीं चला कि मुझे कोविड हो गया, थोड़ा बहुत गले में स्क्रैची हुआ हो, हल्का फीवर आया, लेकिन इनको हाई ग्रेड फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सेम वायरस ने एक साथ एक्सपोज किया। तो इसका ये मतलब है कि वो एनाटॉमिकली या म्यूटेशन वाइज अंदर जाके भी वापस म्यूटेट होके मल्टीप्लाई हो रहा है। पोलियो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए पोलियो कैन गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। लेकिन वायरल डिजीज में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि हाउ द वायरस इज बीइंग एक्सपोज। कोविड इज एक्सपोज थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिक्रीशन से, कॉफ से, स्नीज से,
पोलियो ऐसे नहीं स्प्रेड होता। तो पोलियो का स्प्रेड भी लिमिटेड इसीलिए है। अगर पोलियो का स्प्रेड ऐसे होता तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड को पोलियो होता। ठीक है, तो अगेन डिजीज स्पेसिफिक वैक्सीन होते हैं, जो कि पोलियो अभी एग्जांपल दिया। कोई बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल दो जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, उसको मतलब दोबारा बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है द बेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन इज बीसीजी। अगर बीसीजी वैक्सीन प्रॉपरली लगा हुआ है किसी पेशेंट को या किसी पीडियाट्रिक बच्चे को, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी ट्यूबरक्लोसिस से, जब तक उसकी खुद की इम्यूनिटी कम नहीं होगी। सपोज बीसीजी वैक्सीनेटेड बच्चे को एचआईवी हो जाए आगे जाके, तो ही विल बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। उस स्टेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं जिसको वैक्सीन लगा, बीसीजी वैक्सीन लगा और उसकी नॉर्मल ग्रोथ हुई। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस से एक्सपोजर होगा भी तो माइनर इलनेस के अलावा कुछ और नहीं होगा, मेजर नहीं होगा। दिस इज अ फॉर्म फैक्टर। तो बीसीजी इज द बेस्ट एग्जांपल। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी, डिफाइन करो अपनी लैंग्वेज में, इसको पढ़कर नहीं, कोई भी बता दो। अरे कोई भी बता दो। So this is immunity कि a bacteria or viral agent or any pathogen has entered in our body and there are soldiers ready for them to fight with it. This is called immunity. This is the basic definition. So immunity is the security against a particular disease and non-susceptibility to the invasive or pathogenic effects of foreign microorganisms. Acquired immunity can be active और पैसिव। इसका क्या मतलब है? एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज वैक्सीन। डिजीज बताओ एक मुझे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी दे देती है। एक ऐसी डिजीज बताओ जो एक्टिव इम्यूनिटी दे देती है। और मुझे लगता है कि 30% लोगों को हो भी चुकी होगी यहाँ पर। वेरी गुड, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स इज द ओनली यू कैन से डिजीज कि अगर मैंने पेशेंट को ऑफर किया कि बच्चे को चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगना चाहिए, तो ही विल से डॉक्टर साहब इसको चिकन पॉक्स हो चुका है 1 साल पहले, तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर वैक्सीन मत लगवाओ, छोड़ दो। नंबर 1। नंबर 2 डिजीज जो बहुत कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली जिसमें पुअर सैनिटेशन कंडीशंस होती हैं, हेपेटाइटिस ए। कितने लोगों को हुआ हेपेटाइटिस यहाँ पर? सबको 50% लोगों को हुआ होगा, पता ही नहीं होगा। जॉन्डिस तो हुआ है सबको, हुआ है ना, तो हेपेटाइटिस ए ही था वो 90%। तो हेपेटाइटिस ए इज अनदर एग्जांपल कि पेरेंट विल से दैट द चाइल्ड इज हैविंग जॉन्डिस, प्लीज सी। तो आपने एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेशन भेजा, हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आया, उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके घर में जो भी और बच्चे हैं उनको यू विल एडवाइस कि अगर इनको नहीं हुआ हो तो आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवाओ। सो एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन इज एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज लॉन्ग लास्टिंग, एज आई सेड कि भाई किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो ही वोंट रिक्वायर अ वैक्सीनेशन शॉट। व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? Preformed antibodies are there. So most important example is maternal transmission of antibodies. कुछ कह रहे हो आप, बताओ। कोलोस्ट्रम से भी होता है बट लेकिन बेस्ट एग्जांपल आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी होगा जो कि प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, इट इज शॉर्ट लास्टिंग। आपने देखा होगा कि भाई maternal antibody is transmitted through placenta and it is valid or there in the child for only first 6 months of the life. इसीलिए first 6 months में there is no big disease in a infant। ज्यादातर एंटीबॉडीज मैटरनल ट्रांसमिट हो जाती हैं और दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे विल वैनिश आफ्टर 6 months। इसीलिए शुरू के 6 months में हमको ये 3 वैक्सीन ही लगवानी होती जो मैं आगे बताऊंगा, अदर वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। कभी आपने सोचा है कि भाई मीजल्स, मम्स, रुबेला हम 9 months पे लगाते हैं MMR, 3 महीने में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने पे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट देयर आर मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट विच वर्क फॉर 6 months ऑफ एज मिनिमम। इट कैन बी टिल 8th or 9th month। अगर हम MMR वैक्सीन की एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे तो इट विल कम पॉजिटिव।
So what are live attenuated vaccines? The best example of live attenuated मतलब live वायरस या बैक्टीरिया होगा जो कि केमिकली वीकेंड है, ठीक है. इट विल नॉट क्रिएट डिजीज इन मोस्ट ऑफ द पीपल, बट देर आर केसेस रिपोर्टेड पर्टिकुलरली इन पोलियो that after giving vaccine there was polio disease. There are few cases reported. You can search on Google, majorly in Asian countries. So the best example of bacterial live attenuated vaccine is BCG, oral typhoid and plague. Plague हम अब यूज नहीं करते हैं. वायरल में पोलियो, मीजल्स, मम्स, रुबेला, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, ठीक है. एंड रिकेट्सियल में टाइफस, जो कि हम अभी यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन पीडियाट्रिक पेशेंट. अडल्ट में हम लोग लगाते हैं. व्हाट आर किल्ड एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? सो वो वीकेंड है एंड दीज आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड केमिकली. दे वोंट क्रिएट अ डिजीज फॉर श्योर. इसमें 99.99% चांसेस हैं कि the child won't have the disease because of the vaccine which you are giving. So bacterial में pertussis, typhoid, cholera, plague again we are not using, and meningitis. Viral में rabies, hepatitis B, influenza, polio, shock polio. Polio is not being used in our country, it is used in Africa, and Japanese encephalitis. So there are few vaccines which are being covered day by day by the government of India as well, and there are chances that it will be included in your national immunization program. The best example is Japanese encephalitis and yellow fever. अभी तक ये वैक्सीन मुझे लगता है किसी को नहीं लगी होगी, ना मुझे लगी है, ना ये फॉरेन ट्रैवल करने के लिए अभी मैंडेटरी है एक्सेप्ट यूएस. बाकी सारी कंट्रीज ये वैक्सीनेशन कार्ड नहीं मांगता, लेकिन देयर विल बी टाइम व्हेन दीज टू वैक्सीन विल बी इंक्लूडेड, पर्टिकुलरली येलो फीवर विच इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन अफ्रीका. नाउ व्हाट आर कॉम्बिनेशन वैक्सीन? क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन बना के वैक्सीन बना दें? क्यों? या ऐसा कर दें कि सारे वायरस एक साथ ले लें और उसका एक वैक्सीन बना दें और एक वैक्सीन लगा, काम खत्म. क्यों हम इतने सारे वैक्सीन लगाते हैं अलग अलग? कि भाई पोलियो का अलग लग रहा है, डीपीटी का अलग लग रहा है, येलो फीवर अलग लग रहा है, पोलियो भी ओरल अलग है, आईवी अलग, आईएम अलग है. क्यों ऐसा? So the chemical structure of every bacteria and every virus is different. Plus जब हम कोई भी वैक्सीन को कंबाइन करते हैं या कोई भी वैक्सीन हम बनाते हैं तो उसमें अकेला वाटर और बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया को स्टेबल रखने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं. तो वो केमिकल जो एक बैक्टीरिया के लिए ठीक है वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए खराब हो सकता है. ये सारी चीजें ऑलरेडी आर बीइंग, वैक्सीनेशन पे काम बहुत टाइम से चल रहा है. कभी सोचा है कि मलेरिया की वैक्सीन, डेंगू की वैक्सीन, डेंगू इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वायरस, राइट? तो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है? बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, HIV की, बहुत मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस जो आज भी हमारे बीच में प्रिवलेंट हैं और उनकी वैक्सीन नहीं है. इसीलिए क्योंकि वैक्सीन तो बना देते हो आप, बट लेकिन वो वैक्सीन फॉर्म में आने से लेके पेशेंट को लगने तक, जब तक वो टेम्परेचर स्टेबल नहीं होगा या वो वैक्सीन या बैक्टीरिया वायरस स्टेबल नहीं होगा, वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा. 2 बैक्टीरिया आपने मिला दिए, कॉम्बिनेशन वैक्सीन बना दी, आपने लगा दिया, एक ने एंटीबॉडी क्रिएट कर दी, दूसरे ने की नहीं. एक ने एंटीबॉडी क्रिएट कर दी, उस एंटीबॉडी ने इस बैक्टीरिया को मार दिया, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये देखते हैं, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. द मोस्ट recommended combination which is available in our PHC centers in private practice is for these 3 diseases, diphtheria, pertussis and tetanus, that is DPT. मुझे लगता है सबने नाम सुना होगा, सुना है ना? Second is MMR, measles, mumps and rubella. अभी MR अकेला भी आ गया है, measles and rubella, जो कि स्कूल प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं. Anything to laugh? कुछ भी ऐसी बता दो, मैं भी उसमें नहीं. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्सीन को मैंने लगाया, पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट घर चला गया, उसके बाद
पेशेंट ने एक हफ्ते बाद कंप्लेन किया कि सर इसको फीवर आना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये वैक्सीन की वजह से हो सकता है? एक जनरल क्वेश्चन है। कोई भी वैक्सीन लगाया मैंने, हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और कोई बेटर आंसर? ज्यादातर वैक्सीन का जो एडवर्स इवेंट्स वाले जो रिपोर्टेड हैं, दे आर विद इन 24 to 48 आवर्स। तो कोई पेशेंट अगर आपसे बोलता है कि इसको फीवर कब तक आ सकता है, तो आपको रिकमेंड करना है कि 24 to 48 आवर्स तक द चाइल्ड कैन हैव अ स्पाइक ऑफ फीवर, पेन, स्वेलिंग, रैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम पेशेंट अगर आपको एक हफ्ते बाद दिखाने आता है और बोलता है कि इसको रैश हो गया है, या इसको इंजेक्शन की साइट पे पेन है, या इसको फीवर है, तो मोस्टली वो कोई और वजह से होगा, लेकिन इंजेक्शन की साइट पे लंप कई बार फॉर्म हो जाता है। आपको इंट्रा मस्कुलर वैक्सीन लगानी थी, आपने सबकुटेनियस लगा दी, तो देयर विल बी अ लंप फॉर्मेशन। वो वैक्सीन और वो केमिकल इज नॉट मेंट फॉर सबकुटेनियस एरिया, दे आर मेंट फॉर मस्कुलर एरिया टू गेट एब्जॉर्ब, पर वो सबकुटेनियस एरिया में चले गए, तो वहां पर वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज डिप्थीरिया एंड टिटनस, दैट इज DT, HIV, that is influenza and hepatitis B, and these days pentavalent vaccine is being used frequently, which comprises of diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and influenza B. So these are few important principles of immunization या vaccination. इसका मतलब ये है कि मैं क्या दो लाइव वैक्सीन एक साथ लगा सकता हूँ? मैं क्या एक किल्ड लगा सकता हूँ? क्या मैं दो लाइव एक किल्ड अलग अलग लोकेशन पे लगा सकता हूँ? देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस जो हम सबके दिमाग में होंगे एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आने के लिए। बहुत नींद आ रही है, पानी के लिए। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे 5 साल कहीं ना कहीं टच करेगा, पीडियाट्रिक्स से लेके जीरियाट्रिक्स तक, और आजकल तो अडल्ट इम्यूनाइजेशन भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, है ना। ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए इम्यूनाइजेशन, डिजीज प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन। आफ्टर द वेव ऑफ दिस कोविड, वैक्सीनेशन ने एक अलग ही चैप्टर क्रिएट किया है। हमारी सोसाइटीज में भी एक अलग चैप्टर फॉर्मेशन है कि ये डॉक्टर का ग्रुप सिर्फ वैक्सीनेशन देख रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो वैक्सीनेशन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट दीज डेज। सो 2 live vaccines either can be given on the same day simultaneously or 4 weeks apart. एक पेरेंट आके बोलता है कि मैं 2 वैक्सीन एक साथ नहीं लगवाऊंगा, कोई और ऑप्शन बताइए, तो आप बोलोगे कि एक आज लगवा लो, एक 4 हफ्ते बाद लगवा लो। एक पेरेंट बोलता है कि मैं 4 हफ्ते बाद तो नहीं आ सकता, मेरी जॉब है, आप तो एक आज ही लगा दो। आप उसको साइमल्टेनियसली लगाओगे विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 30 मिनट्स एट मैक्स। ठीक है, साइट अभी डिस्कस करेंगे कौन सी वैक्सीन कहाँ लगती है, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैन बी गिवन साइमल्टेनियसली और एनी इंटरवल बिटवीन द डोजेस। किल्ड वैक्सीन लगा रहे हो, 2 वैक्सीन है, फादर बोलता है कि मैं आज एक लगवा लूंगा, क्या मैं एक कल लगवा लूं, बच्चा बहुत रो रहा है, लगवा लो। उसमें जरूरी नहीं है कि 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स, लेकिन पीडियाट्रिशियन फॉलो अ नॉर्म कि आज वैक्सीन लगाया और कल लगाया और परसों बच्चे को फीवर आया, तो किस वैक्सीन की वजह से आया मुझे नहीं पता। इसलिए ट्राई टू मेक अ डिसेंट गैप और गिव अ डिसेंट गैप ऑफ 1 वीक 5 to 7 डेज कि फर्स्ट वैक्सीन का इफेक्ट चला जाएगा, फिर सेकंड वैक्सीन लगाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहली किड लगाई, दूसरी किड लगाई, दोनों का मिलकर फीवर आ गया, राइट। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू मेक अ डिसेंट गैप, पर बुक्स ये कहती हैं कि देयर इज नो गैप रिक्वायर्ड इन बिटवीन किल्ड वैक्सीन, 2 किल्ड वैक्सीन। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 वीक्स बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ सेम वैक्सीन। जैसे कि इन्फ्लुएंजा जब पहली बार लगता है तो उसमें हम मिनिमम 4 वीक्स का गैप देते हैं 2 डोजेज में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो ईयरली लगती है। तो देयर शुड बी अ मिनिमम गैप ऑफ 4 वीक्स ऑफ द सेम वैक्सीन, ध्यान रखना। इफ नेसेसरी वैक्सीन कैन बी गिवन इन सेम लिम्ब एट अ सिंगल विजिट। वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एटलीस्ट 1 इंच अपार्ट। मतलब 2 वैक्सीन लगने, फादर ने कहा कि आज ही लगाओ, ठीक है, आइडियली 2 अलग अलग लिम्ब में लगनी चाहिए, 1 and 2, पर फादर ने कहा कि नहीं एक ही लिम्ब में लगा दो आप, तो आइडियली आप बोलोगे नहीं आप अलग अलग लिम्ब में लगवाओ,
बट इफ फादर और मदर इज परसिस्टिंग विच दिस परसिस्ट समटाइम्स, कि नहीं आप तो एक ही लिम्ब में लगाओ, अगर लंगड़ाएगा तो एक ही से लंगड़ाएगा, दोनों में लगा दोगे आप तो दोनों से नहीं चल पाएगा। तो देर आर फ्यू, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है कि आप एक ही लिम्ब में लगा सकते हो एटलीस्ट 1 इंच अपार्ट। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पर नहीं समझने वाले के लिए तो फिर दुनिया है ही नहीं, राइट। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं आप लगा सकते हो, और फादर परसिस्ट करता है तो यू कैन ऑलवेज पुट, एंड यू शुड पुट इन योर नोट्स दैट द फादर परसिस्टेड फॉर द सेम लिम्ब, बिकॉज ऑफ दैट द वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इन द सेम लिम्ब। ये अलग बात है कि फादर उसके बाद आपके पास आएगा ही नहीं, फिर वो बोलेगा आपने तो लिख दिया इस पर, लिखा क्यों। A delay in lapse in administration does not require repetition of schedule. Missed doses is administered and course is resumed. इसका मतलब ये है कि आज एक वैक्सीन लगा, उसका नेक्स्ट बूस्टर 1 महीने बाद ड्यू था, फादर मदर आके बोलते हैं कि हम भूल गए, हम घूमने चले गए थे, जो आजकल सब लोग जाते हैं। उसके बाद आके बोलते हैं कि हम 2 हफ्ते डिले हो गए हैं, तो क्या हम पहला डोज रिपीट कराएं? नहीं, आप पहला डोज उस दिन पे वापस नहीं लगाओगे, आप सेकंड डोज जो बूस्टर है आप उसमें लगा दोगे। अब इसमें भी एक चीज है जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में अगर बुक के हिसाब से गैप 4 वीक्स है, तो आप 8 वीक्स तक बूस्टर लगा सकते हो। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बुक से कहती है कि आप तो सेकंड डोज लगा दो क्योंकि फर्स्ट का काम हो गया होगा, पर आइडियली अगर 8 वीक्स से ऊपर का गैप हो गया है तो फर्स्ट डोज शुड बी रिपीटेड आइडियली, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, बट बुक से कहती है कि फॉलो करने की इस तरीके से जरूरत नहीं है। डिफरेंट वैक्सीन नॉट टू बी मिक्स इन द सेम सिरिंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया कि एक सिरिंज में 2 वैक्सीन कभी मिला के नहीं लगाना, कभी भी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ पीडियाट्रिशियंस बनेंगे, कुछ मेडिसिन में जाएंगे, कोई कुछ होगा, पर वैक्सीन सब लोग लगवाएंगे या लगाएंगे अपने अपने कैरियर में कभी भी, चाहे टिटनेस की लगाओ पर लगाओगे जरूर। एक बात ध्यान रखना कि जब पेरेंट या पेशेंट आपके पास आता है वैक्सीनेशन के लिए, तो उस समय चाइल्ड इज एब्सोल्युटली स्टेबल, वो आपके पास सिर्फ वैक्सीन लगवाने ही आ रहा है, ही इज नॉट इल, ही इज नॉट सिक। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद अगर कुछ हो गया तो वो वैक्सीन पे दोष कभी नहीं देगा, क्योंकि सबने गब्बर इज बैक पिक्चर देखी हुई है, राइट। तो वो ये समझते हैं कि डॉक्टर, सब डॉक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में कभी ऐसा मत करना, आप यहाँ पर ओपीडी का पेपर लिख रहे हो, वैक्सीन फॉर ये नर्स, वैक्सीन नर्स को नहीं पता, नर्स को इतनी समझ नहीं है जब तक कि वो नर्स एम्स और गंगाराम जैसे हॉस्पिटल की नहीं होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड बी अलर्ट एंड कॉशियस वाइल गिविंग अ वैक्सीन, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पेशेंट को, चाहे पीडियाट्रिक को चाहे अडल्ट हो, अगर पहली बार वैक्सीन लग रही है तो देयर आर चांसेस कि इसको कुछ ना कुछ एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, तो यू शुड बी डबल श्योर। कोविड वैक्सीन में जिसको पहली बार लगाते थे तो ये बोलते थे 10 मिनट बैठो फिर जाना। ऐसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम के लिए डोनेट करने जाते हैं तो बोलते हैं 15 मिनट बैठो फिर जाना। कोई भी केमिकल जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, आईवी, आईएम और ओरल, तो देयर कैन बी एनाफाइलैक्सिस एंड देयर आर चांसेस, क्योंकि फादर मदर पैनिक होते उनको टाइम ही लगेगा, ठीक है। आपको पता है कि रिएक्शन हो सकती है, पर फादर मदर को नहीं। फादर मदर के लिए तो ऐसा होगा कि उसने कोई टीवी में कोई हॉरर मूवी देख ली हो, बच्चा पूरा रेड हो गया, मदर, बच्चा बोलती है फादर से आप पकड़ो मेरे से नहीं संभल रहा, फादर बोलता है डॉक्टर साहब संभालो क्या हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देयर इज अ स्मॉल इंसिडेंट, माय फादर यूज्ड टू प्रैक्टिस जनरल मेडिसिन व्हेन ही वाज इन इंटर्नशिप। तो उस समय एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे इतने सारे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता था, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, आईवी पेनिसिलिन। बट यू मस्ट बी नोइंग कि पेनिसिलिन का एडवर्स रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है। सो ही यूज्ड टू नरेट दिस स्टोरी कि देयर वाज वन पेशेंट, ही केम विद पेन इन एब्डोमेन एंड वो क्लिनिकली जॉन्डिस था उसको, और वो साथ में हाई ग्रेड फीवर, रैश भी हो रहा था। तो उस समय देयर वाज नो मेजर इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी भेज दिया जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती थी। तो उन्होंने फर्स्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन लगाया। ही यूज्ड टू गिव पेनिसिलिन फॉर, मतलब 6-7 महीने हो चुके थे स्टार्ट करे हुए। फर्स्ट पेशेंट ऐसा है कि उसको पेनिसिलिन लगा आईवी। सो पहले है ना ग्लास सिरिंजेस होती थी, प्लास्टिक सिरिंज नहीं होती थी, और उसका जो पीछे का प्लंजर होता था वो स्टील का होता था। उसको बॉईल करते थे, उसको स्टरलाइज करते थे, उसी में लगाते थे। फिर नया पेशेंट आया तो नई निकाल ली, ऐसा नहीं होता था, यूज एंड थ्रो नहीं होती थी पहले। तो उन्होंने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लोड किया, पेशेंट को दिया,
पेशेंट ने धन्यवाद डॉक्टर साहब 50 पैसे दिए, 50 पैसे ही फीस होती थी पहले, और he went away. My father was having lunch after 30 minutes of that particular incident. His attenders came back that the patient died. So my father said, died? Which patient? बोले सर अभी आपने इसको इंजेक्शन लगाया, तो बोले लेकर आओ. So he was basically in the state of unconsciousness. उसको लेकर आए, उसकी पूरी बॉडी पर रैश हो गए थे, जहाँ वैक्सीन जहाँ पर आईवी इंजेक्टेबल दिया था वहाँ पर एक ब्लैब हो गया था. फीवर वॉज 105 विद इन 30 मिनट्स. तो वो सीवियर एनाफाइलेक्सिस था. अब आजकल की इंटर्नशिप पहले वाली इंटर्नशिप जैसी नहीं होती थी. आजकल की इंटर्नशिप में तो कोचिंग करते हैं हम लोग, मैंने भी करी है, आप लोग भी करोगे. पहले इंटर्नशिप में दे यूज्ड टू वर्क इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट फॉर कपल ऑफ मंथ्स. तो ही न्यू कि मुझे क्या करना है. तो ADR ही लोडेड एड्रेनलिन एंड गेव इंट्रामस्कुलर. विद इन 15-20 सेकेंड पेशेंट रिवर्टेड. 15 से 20 सेकंड के अंदर फीवर था, बट लेकिन हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया, कॉन्शियस हो गया. उससे मेरे फादर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो ही नरेटेड दैट आफ्टर गिविंग द इंजेक्टेबल 10 से 15 सेकंड बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म लिक्विड चीज मेरे अंदर बह रही है, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं. सो इट वॉज द सीवियर एडवर्स इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजेक्शन, दैट इज पेनिसिलिन. उस इवेंट के बाद मेरे फादर ने ये हमेशा ध्यान रखा कि मैं किसी को पेनिसिलिन दे रहा हूं तो साथ में मैं एक इंजेक्टेबल ADR को लोड करके रखूंगा, जो कि मैं 3 से 4 घंटे तक लोड करके रखूंगा, फिर नया बना लूंगा, जिससे कभी कोई पेशेंट को ऐसा होगा तो आई विल गिव ADR. और कभी भी फिर पेनिसिलिन लगाने के बाद ये नहीं बोला कि जाओ, वेट फॉर 15 मिनट्स एंड गो. तो कुछ चीजें हमको प्रैक्टिकल सिखाती हैं, और वो सारी चीजें हमारे आज बुक्स में हैं. तो ये इन चीजों का हमको ध्यान रखना है. तो इससे क्या सीखा कि वैक्सीन जब किसी को पहली बार लग रही है, ऑलवेज आस्क हिम, बाहर बैठिए और बच्चे को फीड करा लीजिए 10 मिनट. उसको इस तरीके से मत बोलिए कि लाल हो जाएगा या फीवर आ सकता है या देयर विल बी अ ब्लास्ट आफ्टर 15 मिनट्स, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उससे बचना कैसे. नहीं, जस्ट आस्क हिम टू सिट आउटसाइड, फीड द बेबी बिकॉज द चाइल्ड इज इरिटेबल आफ्टर द वैक्सीनेशन, एंड उसके बाद आप उसको भेज सकते हो. दूसरा, ऐसा भी नहीं करना है कि जो आजकल एक कोई डॉक्टर इमरान है इन अहमदाबाद जो गाने गा के लगाता है, एब्सोल्यूट रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन. उसको मालूम ही नहीं है कि वो सब कुटेनियस जा रही है कि IM जा रही है, क्योंकि वो देख बच्चे को रहा है, लगा ऐसे रहा है. दिस इज रॉन्ग. वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ठीक है, बट वो मेडिको लीगली कभी ना कभी ही विल लैंड इन सूट कि वो गलत जगह लगी और बच्चों को रिएक्शन हो गया. ठीक है, तो वो भी नहीं करना है. Vaccination is not contraindicated in minor illness, prematurity, malnutrition और allergies. आपसे पेरेंट आके पूछेगा कि मेरे बच्चे को पीनट से एलर्जी बताइए एक पीडियाट्रिशियन ने, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा लूं? माइनर एलर्जीज में आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या कभी एडमिट हुआ है, वो बोलेगी नहीं. फिर आप डॉक्टर के पास क्यों गए कि आपको एलर्जी के लिए इन्वेस्टिगेट कराना पड़ा? बोले ये चीख बहुत ज्यादा मारता था जब ये पोहे खाता था मूंगफली वाले. तो ये माइनर एलर्जीज में आते हैं. जब तक ही इज नॉट बीइंग ट्रीटेड और एडमिटेड फॉर सम काइंड ऑफ एलर्जी, आप वैक्सीनेशन लगा सकते हो. लाइव वैक्सीनेशन इज ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सम काइंड ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट. जैसे कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें लाइव वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? बताओ. नहीं, HIV. या if the child is taking some kind of immunosuppressant, like कौन सी डिजीज में लेते हैं? Suppose a child is having some kind of tumor, he is on immunosuppressive therapy, उसमें भी live attenuated vaccine contraindicated होंगी. एक ऐसी डिजीज बताओ जो सीरियस इतनी ज्यादा नहीं है पर उसमें immunosuppressant बच्चा खाता है. पीडियाट्रिक सही आंसर है, बट पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं अभी अपन. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी स्टार्ट की जाती है, MMF स्टार्ट किया जाता है, टेक्रोलिमस देते हैं. उसमें आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को नहीं दोगे और फादर को ही लिखोगे कि नो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन शुड बी गिवन, या आप पेपर पे लिख के दोगे. एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर टू रेबीज, मीजल्स एंड वेरिसेला एंड हेपेटाइटिस B. So although
देर आर डिजीजेज, जैसे मैंने बताया कि वेरिसेला है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, इसके बाद वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, हेपेटाइटिस ए भी है। बट बुक्स कहती हैं कि रेबीज के बाद भी, एक बार रेबीज हो जाए उसके बाद वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बट उस रेबीज के बाद अगर वो बचेगा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ केसेस ऑफ रेबीज आर फेटल। ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? इट इज द प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफर्ड during the childhood to prevent certain kind of diseases. These program was formed and was launched by government of India at a certain date, so that प्रोग्राम फॉर्म में जब लिस्ट करते हैं वैक्सीन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक उसका स्केड्यूल बना के दिया है जिससे डॉक्टर को भी याद रहे, जिससे पेशेंट को भी याद रहे कि मुझे इस डेट को अगली वैक्सीन लगवानी है। कोई वैक्सीन के बीच में अगर 3 महीने का गैप है तो वो डेट हमने इसलिए दी है जिससे वो एक कैलेंडर फॉर्म में हो और आपको याद हो और वो प्रोग्राम का फॉर्म ले। अगर हम बोल देते कि भाई ये 5 वैक्सीन है, आप ये अगले 3 साल में लगवा लेना, तो कभी लगती नहीं 5। या पेशेंट आके बोलता है भाई साहब एक ही दिन लगा दो, आज फुर्सत निकाल के आया हूँ, 5 लगा दो आज। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक श्योर किया कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया जाए जिससे एक, जैसे आज आपकी क्लास मॉर्निंग से लेके 4 बजे तक है, अगर ये क्लास आपको टाइम टेबल नहीं दिया होता तो आप में से आधे सारे लोग बोलते एक साथ ही ले लो, आप तो लंच वन छोड़ो, 1 घंटा जल्दी छोड़ देना। इसीलिए प्रोग्राम दिया जाता है कि एक प्रॉपर तरीके से वो चीज फॉलो हो, जैसे कि हमारा टाइम टेबल होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीकन कंट्रीज। अगर आप पढ़ोगे तो WHO की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कम्युनिटी बेस्ड होता है और कम्युनिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी कम्युनिटी पे हमने बोला कि 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे इम्यूनाइज करना है बच्चे को। ये वैक्सीन है, ये आपको 6 महीने के अंदर अंदर वाला, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते। क्योंकि हम नॉर्मल लैंड लेवल पे रह रहे हैं, हम एक कम्युनिटी पे रह रहे हैं, हमारे पास कार भी है, स्कूटर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, ऑटो भी है। हमारा PHC हमारे घर के नजदीक है, आप महात्मा गांधी नहीं आ सकते। आप अगर मानसरोवर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आपके घर के आसपास कोई ना कोई PHC होगा। लेकिन इन सर्टेन कंट्रीज लाइक अफ्रीका में भी और कंट्रीज में है, अफ्रीका इज नॉट कंट्रीज अ कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहां पर PHC इतने नंबर्स में नहीं है। तो प्रोग्राम उनके हिसाब से डिसाइड किया है कि इनको या तो घर जाके वैक्सीन लगाया जाए, वी विल कम टू योर विलेज ऑन दिस डेट फॉर दीज वैक्सीन। ये भी WHO का प्रोग्राम है। आपने नोट किया होगा कि आज से कुछ साल पहले घर घर जाके पोलियो पिलाते थे और घर के बाहर नंबर लिखते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि PHCs बढ़ रहे हैं। एक गांव के लिए एक PHC हो गया, पहले 10 गांव के लिए एक PHC होता था। व्हाट इज PHC? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो अब PHCs को भी अपग्रेड कर रहे हैं। पहले वहां पर एक नर्सिंग स्टाफ रहता था, अब वहां पे MBBS डॉक्टर पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें अपग्रेड हो रही हैं। कम्युनिटी वाइज वैक्सीनेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एक गांव है जो लैंड लॉक्ड नहीं है, उसके चारों तरफ पानी है, वाटर लॉक्ड है, वो बाहर कैसे निकलेगा? तो वैक्सीनेशन या WHO उन तक पहुंचेगा कि भाई आपके लिए सबसे ये 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो मुझे लगाने हैं, तो इसके लिए मैं आप तक पहुंचूंगा, आप बताओ। क्योंकि WHO का एम है कि वैक्सीन शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी पीडियाट्रिक पेशेंट। WHO launched global immunization program in 1974 first, known as expanded program on immunization, that is EPI, to protect all children of basically 6 killer disease जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। EPI in India was launched in 1978। तो 1978 के पहले क्या वैक्सीनेशन नहीं होता था? जो एफ्लुएंट सोसाइटी में रहते थे वो बोलते थे कि भाई मेरे बच्चे को ये वैक्सीन लगा दो। सारे वैक्सीन नहीं थे, जैसे स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन कितना लेट आया, PCG कितना लेट आया। बेसिक वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो 1974 में लॉन्च हुआ था, पर्टिकुलरली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? अंडर डेवलप्ड। हमारी थर्ड वर्ल्ड है। हमारी कंट्री डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? डेवलपिंग है। डेवलप कौन सी कंट्री है? आधे से लोग चले जाओगे नहीं। EPI was renamed to Universal Child Immunization as per the declaration sponsored by UNICEF. In India,
It is called Universal Immunization Program and was launched in 1985. So 1985 में final program को rename किया Universal, not for a particular society, it's for everyone. अब this is the National Immunization Schedule. बर्थ पे कौन सा वैक्सीन देंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 6 वीक्स पे कौन सा, 10 वीक्स पे कौन सा और 14 वीक्स पे कौन सा. तो बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी. ये बर्थ पे देके ही आप डिस्चार्ज करते हो, वापस नहीं बुलाते, बर्थ पे देके डिस्चार्ज करते हो. अगर पेशेंट एनआईसीयू में एडमिट है किसी डिजीज की वजह से, देन उसको आप वेट कर सकते हो, बोलो कि 2 हफ्ते बाद आके लगवा लेना, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ये आप लगा के भेजते हो. 6 वीक्स पे अगर बीसीजी नहीं मिला है किसी वजह से, तो उसको आप 6 वीक्स पे लगा सकते हो. देन 6 वीक्स पे दूसरा क्या देते हैं, पेंटावेलेंट, OPV1 और हेपेटाइटिस बी. ठीक है, यही हम रिपीट करते हैं 10 वीक्स पे, दैट इज पेंटावेलेंट 2, OPV2, हेपेटाइटिस B2, और फिर 14 वीक पे देते हैं पेंटावेलेंट 3, OPV3 और हेपेटाइटिस बी. तो OPV, पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस ये 3 बार देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. डीपीटी से जो फीवर आता है वो पहली बार में आता है. अगर वो फीवर ज्यादा आ रहा है तो यू विल एक्सप्लेन टू द फादर कि भाई ये फीवर नेक्स्ट वैक्सीन में भी आएगा, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. कई बार फादर मदर आके बोलते हैं कि फीवर तो आया ही नहीं, वैक्सीन लगी थी क्या, वैक्सीन तो सही लगी थी ना, फीवर तो आया ही नहीं. मेरे ऑफिस में कलीग है, उसके बच्चे को तो बहुत फीवर आया था, बट मेरे बच्चे को फीवर ही नहीं आया. तो ये एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसका आपको रीजन बताना आना चाहिए कि फीवर सबको नहीं आता. देयर इज वन जोक, वन अफगान went to a pawn shop and asked for a packet of cigarette. So the shopkeeper said 150 rupees. So he gave 150 rupees and the packet of cigarette was received. उसने पैकेट ऑफ सिगरेट को घुमाया, बोले इस पे कैंसर की वार्निंग तो है ही नहीं, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल दो जिससे कैंसर होता है. तो फादर भी मदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई फीवर नहीं आया तो मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है ना, तो आपको ये चीजें एक्सप्लेन करती आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद रोटा वायरस की जो वैक्सीन है, रोटावैक 2, 4 एंड 6 मंथ्स पे हम देते हैं. ओरल डोज होती है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अवेलेबल है नहीं है, मेजरली शॉर्ट ऑफ स्टॉक रहता है, पर्टिकुलर इन PHCs में, लेकिन जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उसमें ये अवेलेबल रहती है. 9 मंथ्स पे फिर क्या देंगे हम, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला. तो ये आपका सबकुटेनियस रूट है. द रूट इज डिफरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ. आप देखोगे बर्थ से लेके 9 मंथ्स तक एवरी वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर और ओरल, लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसी वैक्सीन आएगी जो सबकुटेनियस है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये सबकुटेनियस ही लगानी है. Then at 16 to 24 months of age, again DPT booster, OPV and measles again second booster. 5 to 6 years DT, 10 to 16 years tetanus, early pregnancy TT1 and after a month TT2. ये सारे IM है. इसका फोटो क्लिक कर लो. This is the immunization schedule given by Indian Academy of Pediatrics. यार ये 2-4 जने ले लो, शेयर कर लेना, तो सब निकाल के बैठ गए. So this immunization schedule is given by Indian Academy of Pediatrics in the year 2023 after a long discussion कि भाई ये वैक्सीन का जो चार्ट है, recommended age, catch up age and vaccine in special situations जैसे कि Japanese encephalitis and yellow fever. So these vaccines should be given according to Indian Academy of Pediatrics, not Government of India. दोनों में डिफरेंस है, मैं फिर बता रहा हूँ. Patient will come and ask, सर प्राइवेट वाले वैक्सीन लगवाना जरूरी है क्या? What are प्राइवेट वाले वैक्सीन which are being given by Indian Academy of Pediatrics, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है हमारा हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स, की गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इसकी अभी इतनी मॉर्टिलिटी नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन दोज डिजीज फर्स्ट जिसकी ज्यादा मोर्टिलिटी है, ठीक है, और जिसका स्प्रेड ज्यादा है. तो ये वैक्सीन हमको पता होनी चाहिए. अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको वैक्सीन को 2 में डिवाइड करना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये चार्ट है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द मेजर माइलस्टोन्स इन इम्यूनाइजेशन?
1978 हमने डिस्कस कर लिया। 1983 एडिशन ऑफ टीटी वैक्सीन। इसमें इंपॉर्टेंट जो है इज 1985 पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन वाज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमारे दूरदर्शन पे ऐड आना स्टार्ट हो गए थे। आप लोग तो हो गए नहीं 85 में, हाँ, बाद में देखा होगा, बट पहले जो दूरदर्शन आता था ना, उसमें हर आधे घंटे पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आके 2 बूंद जिंदगी की बता रहा होता था। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन को ही देखा है, हमने और बहुत लोगों को देखा है, ठीक है। तो 1985 पल्स पोलियो वाज इंट्रोड्यूस्ड, 2002 हेपेटाइटिस बी, 2006 जैपनीज एनकेफेलाइटिस। एंड जब जैपनीज एनकेफेलाइटिस का सक्सेस रेट अच्छा देखा गया, रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया पर्टिकुलरली इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो 2010 में इसको 112 डिस्ट्रिक्ट्स तक भी लॉन्च कर दिया गया। देन इसमें पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 2016 रोटा वायरस। तो व्हाट इज रोटा वायरस, किसी को पता है? वायरस है, नाम बता रहा है, ठीक है। जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो कम से कम बोलना स्टार्ट कर दो, सर इट्स अ काइंड ऑफ वायरस, देन फिर टीचर शायद कुछ एड ऑन कर दे। तो रोटा वायरस इज स्प्रेड थ्रू fecal route. The signs and symptoms are diarrhea and vomiting, pain in abdomen, low grade fever. It is more prevalent in colder areas, particularly in western countries, more prevalent in United Kingdom. रोटा वायरस की एक और स्ट्रेन होती है जिसको हम नॉर्वो वायरस बोलते हैं, वहां पे नॉर्वो वायरस ज्यादा होता है। हमारी कंट्री में रोटा वायरस इज ऑल्सो प्रेवलेंट, पर्टिकुलरली व्हेन द वेदर इज कूल। तो विंटर्स में अगर आपके पास कोई वाटरी डायरिया के साथ आता है विदाउट ब्लड इन द स्टूल, आप सोचोगे रोटा वायरस है। रोटा वायरस का टेस्ट भी अवेलेबल है टू डायग्नोस। रोटा वायरस में कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट मेंटेन हाइड्रेशन। लेकिन अगर वैक्सीनेटेड है बच्चा, तो रोटा वायरस का आपको लो ग्रेड फीवर, 1-2 एपिसोड ऑफ लूज टूल होंगे, उसके बाद ही विल रिकवर। तो रोटा वायरस वाज इंक्लूडेड in 2016. Measles, mumps, rubella and MR campaign was started in 2017 in some states. कोविड के बाद या कोविड के पहले की बात करें तो वैक्सीनेशन कैंपेन्स वाज अ बिग फेलियर। मतलब दिस इज नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट इट वाज अ बिग फेलियर, क्योंकि लोगों को शायद नहीं पता था कि वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बचपन में लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। आई वॉज इन यूनाइटेड किंगडम फॉर 3 years. 70% ऑफ पॉपुलेशन, द ब्रिटिश पॉपुलेशन के पास के बच्चों के पास देयर वाज नो वैक्सीनेशन, 70% ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन। लेकिन वो जब उनको पहली बार निमोनिया होता है तब उनको इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि भाई पीसीवी की क्या वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है। दे से दैट कि भाई वी डोंट केयर, हमको नहीं पता ये क्या वैक्सीन है, हमको कोई भी ड्रग बच्चे के अंदर नहीं लगवानी है। माई डॉटर वॉज बोर्न इन लंडन, बीसीजी वैक्सीन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका, क्योंकि वहां पे थी नहीं पूरे लंदन में बीसीजी वैक्सीन। दे गेव मी अ ड्यूरेशन ऑफ 3 months कि 3 महीने के अंदर अंदर लगवा देंगे, या तो आप इंडिया जाके लगवा लो या फिर हम आपको यहाँ 3 महीने के अंदर लगवाएंगे। तो अफ्रीका से इम्पोर्ट होकर वैक्सीन लगी थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं लगवाता। कोविड में भी यू मस्ट हैव रेड कि आवर कंट्री हैज हैड लेस मोर्टिलिटी एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री। ऐसे क्यों था पता है? 2 रीजन से, बताओ। हाँ, अरे एक कोई भी बोल दो यार। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो गया ना, वो हाइजीन पे ध्यान देते तो वहां कम होनी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे लास्ट आंसर होगा। और कोई? सो जेनेटिक मेकअप ऑफ सर्टेन स्पीशीज और वेस्टर्न पीपल हमारे में कुछ डिफरेंट है, डीएनए मॉडल डिफरेंट है। कुछ ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो हमारे अंदर ज्यादा प्रेवलेंट डिजीज पैदा करेंगी एज कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। सिमिलरली देयर इज अनदर रीजन कि they were not vaccinated for a single vaccine in their lifespan. There was not a single antibody of any kind of disease. You must have noted कि a particular western person is visiting India और यहाँ से बीमार पड़ गया because there is no antibody. Similarly, जब पहली बार एंटीजन गया, वायरल एंटीजन in the form of COVID, तो it created havoc.
particularly in Western country people. Plus, no vaccine, no prevention was there in Western countries, particularly in Europe. अगर आप पढ़ोगे इसको निकालकर, तो no masks were used in United States and European countries, जो कि हम घर बैठे मास्क लगाए घूम रहे थे ना, खाना मास्क लगाए खा रहे थे, क्योंकि कोविड है। न्यूज़पेपर को धो रहे थे, जो बिजनेसमैन थे वो नोट घर जाके धो रहे थे, 1 घंटा उनका पैसे धोने में निकलता था, है ना। फिर हेमा मालिनी ने लॉन्च कर दिया कैंट वेजिटेबल वॉशर, कोविड से बचाए। तो हम इतना ध्यान रख भी रहे थे, जेन्युइन बात है, हम डरे हुए थे, पर उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, आया है कल चला जाएगा, इसलिए वहां ज्यादा मोर्टिलिटी हुई। प्लस वैक्सीनेशन जितना प्रिविलेंट, जितना WHO हमारे यहाँ काम कर रहा है, उतना वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द वैक्सीनेशन। अब वहां पर वायरस बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते बिकॉज ऑफ द एडवर्स कंडीशन, बिकॉज ऑफ द कोल्डर टेम्परेचर, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स है। कोई भी वायरस और बैक्टीरिया विल वर्क एंड विल सर्वाइव इन द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन विच इज हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी भी हो और थोड़ा सा टेम्परेचर भी हो जिसमें वो मल्टीप्लाई हो सके। नाउ लास्ट फ्यू पॉइंट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन। भाई इफ द पेशेंट इज सेइंग कि मुझे अभी सीवियर कॉफ, कोल्ड एंड निमोनिया हो रखा है बच्चे को, you won't prescribe any kind of vaccine. Live vaccines particularly should not be administered in immunosuppressive patients, that the patient is on immunosuppressive therapy, immunodeficiency disorders, particularly in HIV, lymphoma and in malignancy. If the child is having acute illness, बच्चा लेके आते हैं पेरेंट, उसको फीवर है अभी 101 का, वो वैक्सीन लगवाने ले आया, डॉक्टर साहब आपने कहा था कि आज नहीं लगी तो दुनिया इधर उधर हो जाएगी, आप तो लगा दो, नहीं लगानी। एक्यूट इलनेस में यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब वैक्सीन जिसमें कॉफ, कोल्ड और फीवर आता है। पर्टिकुलर रिस्क ग्रुप्स आर देयर जिसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, प्रीमैच्योर बेबी है, डाउन सिंड्रोम है, लो बर्थ पेशेंट है, एस्प्लीनिया है, किसी की स्प्लीनेक्टमी होनी है, उसके लिए वैक्सीनेशन ग्रुप इज डिफरेंट। Mild and moderate ill children should be immunized as per your examination. If you think that these symptoms are mild symptoms, तो आप वैक्सीन लगा दो, there is no harm. आपका क्लिनिकल जजमेंट ये कहता है कि these symptoms are mild, वैक्सीन should be given, but father is saying कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन लगानी चाहिए, तो आपको जबरदस्ती नहीं लगानी। आप बोलो भाई साहब जब आपको ठीक लगे आप ले आना, क्योंकि if there will be any kind of adverse reaction, he will टेल यू कि भाई मैंने तो बोला था मत लगाओ, आपने जबरदस्ती लगा दी। टू कंक्लूड, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होता है? वो तो इस पे लिखा है, जानबूझ के गलत लिखा है मैंने, यही होता है क्या? चलो आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। अटेंडेंस दे दो। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरीज नॉट रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, टू एनीथिंग, क्योंकि वी विल मीट मे बी व्हेन यू विल बी इन फाइनल ईयर, उसके पहले हम नहीं मिलेंगे शायद ना। तो यू आर सीइंग माय फेस फॉर द पर्सन लास्ट टाइम इन नेक्स्ट 3 years। कुछ अगर पूछना हो, कोई क्वेरी